Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news and editorial from Hindu and Indian Express. So I'll discuss the most important news and editorial in this session, and additionally I'll be supplementing the news with some added information that can help in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 17th of May. The first topic is restructuring the tribunal system. This is editorial. Second is a strict rule for slot of information sharing with the third parties. Third topic, UNSC call for end to violence in Gaza. We've seen a lot of disruption going on in Israel and Palestine region. The second last, state-wise positivity is uneven across the states. Some data which is evident to show what is the variation. And the last is government fails during the second wave of COVID-19. So this is again an editorial. So we're discussing two important editorial from today's newspaper. Apart from all the discussion that we'll have at the end of this session, we'll also have some MCQs question based on current affairs. This would be very helpful for you for the upcoming prelims examination. And for time being, if you have not subscribed to our channel, do check it out. Do subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give a thumbs up. Now starting our session, the first topic, that is restructuring the tribunal system, the editorial from the Hindu. So this can be categorized under Gender Studies paper 2, structure, organization and functions of judiciary, right? So before I proceed with the editorial, we'll see what are the issues that are going to be discussed under this editorial, what are the subheads upon which the entire discussion would go. So first, what is the theme of this editorial? So the entire editorial talks about the need for the establishment of National Tribunal Commission, also known as NTC. तो पूरे डिस्कशन में NTC के बारे में बात की गई है, उसको समझेंगे. उसके अलावा गवर्नमेंट जिस तरह से ऑर्डिनेंस रूट लेकर के आई है, विल सी दैट ऑल्सो. सो दीज आर द कैटेगरीज अपॉन विच द एंटायर डिस्कशन वुड गो. तो मैं आपको पहले एक सब हेडिंग बता दे रहा हूँ ताकि सारी डिस्कशन उसके बाद की जाएगी. उसके बाद कुछ कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म देखेंगे इस एडिटोरियल में जो बात की गई है. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन बताई गई है. फोर्थ, द फंक्शंस ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, कैसे फंक्शंस करनी चाहिए, क्या डायरेक्शंस हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ एनटीसी, दैट इज नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, और कुछ ट्राइब्यूनल के बारे में जो बेसिक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड. विल सी एवरीथिंग वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, that is what actually has happened, that the central government has promulgated a tribunal reform rationalization condition of service ordinance 2021, जिसमें ये कहा गया है कि जो एपेलेट अथॉरिटीज़ है, जितने भी अथॉरिटीज़ है, दैट वुड कम अंडर द रिप्लेसमेंट विद द हाई कोर्ट. मैं आपको आगे एक वीडियो भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको ये बताऊंगा किस तरह से जो रिप्लेसमेंट है वो कंटिन्यूड है. Now the center has abolished several appellate tribunal authorities जो हैं, जिनके jurisdiction को किसी और judicial bodies के साथ merge कर दी. Now this ordinance has been challenged in the Supreme Court, and because of the reason the government has come up कि जो National Tribunal Commission है उसकी establishment बहुत ज़रूरी है. So you can see the transfer of function of the key appellate bodies that were proposed under this ordinance. तो मैं कुछ important acts मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूँ. And what you have to do, you can take a screenshot of it so that you can have basic information with you. So first is the Cinematography Act 1952. इसको जो proposed entity है वो हाई कोर्ट के लिए रखी गई है. Copyright Act of 1957, that would be under Commercial Court of Commercial Division of the High Court. उसके अलावा पेटेंट एक्ट दैट हैज़ बीन लॉन्ग टॉक्ड अबाउट इन दिस कोविड. सो इसके लिए जो अपलेट बोर्ड होगी प्रपोज्ड है, दैट इज़ फॉर द हाई कोर्ट. एंड इस तरह से और बहुत सारी हैं, आप लास्ट देख सकते हैं. जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके लिए भी हाई कोर्ट प्रपोज की गई है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एक्ट्स थे जिनके अपलेट बॉडीज और प्रपोज्ड एंटिटी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस में बताए. Now some concerns and criticism that was raised. तो पहले ये बताई गई कि जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई गई थी, this has definitely impacted the legislative process, okay, and the tribunal is something which is very important. उसकी एक अलग ही importance, एक अलग ही गरिमा है, right? So
फिल्म सर्टिफिकेशन जैसे इस तरह के जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है उनको किसी भी स्टेक होल्डर से बिना कंसल्टेशन के डिसॉल्व कर दिया गया। एंड डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देखिए रोजेर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा, दे हैव सेड दैट नो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज कंडक्टेड प्रायर इन एबॉलिशिंग द ट्राइब्यूनल ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो एबॉलिश करने से पहले ट्राइब्यूनल को किसी भी तरह से कोई जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की गई एंड इट वाज डन, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो टेकन अ नोट ऑफ दिस। Now, National Tribunal Commission, this is what actually was proposed और ये किस तरह से काम करेगी। मैंने आपको पहली एडिटोरियल से पहले सबसेट्स बता दिए थे कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से विल डिस्कस। सो कमिंग टू द नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि द सेंटर शुड कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है सुपरवाइज करेगी अपॉइंटमेंट को लेकर के, किस तरह से फंक्शंस करेगी ट्राइब्यूनल पैन इंडिया, उसको लेकर के एक जो चीज बनाने की जरूरत है वो है नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड। नाउ सेंटर इज येट टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, अभी तक इसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं की गई है। This would be acting as an umbrella body to take care of all the administrative infrastructure need of the tribunal, right? जो आइडिया थी फर्स्ट ट्राइब्यूनल की, दैट वाज एक्चुअली mooted in L. Chandra Kumar versus Union of India in 1997, but still no light have been seen in this regard. But no light has been seen in this regard का मतलब है अभी तक कुछ कंस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट ने नहीं किया। Now, initiating the dialogue and promoting awareness is something which is very important. NCT का काम होगा कि वो गवर्नमेंट की जो इनर्शिया है, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस तरह की जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो ट्राइब्यूनल है वो काम कर पाए। The NTC could also therefore pave way for the separation of administrative and judicial functions. Like ट्राइब्यूनल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है साथ के साथ जो जुडिशियल फंक्शन है उसके डिफरेंस एस्टैब्लिश करने में एनसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकती है, राइट। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ द एनसीटी, जो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी क्या क्या होगी। सो इट वुड आइडियली टेक सम ड्यूटीज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट, राइट। परफॉर्मेंस की जो स्टैंडर्ड है, खास करके एफिकेसी ऑफ ट्राइब्यूनल की बात करें तो ये सारे चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर आती है जो कि एनटीसी को डील करना था। इंपॉर्टेंटली फंक्शंस ये बताया गया, जो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी होगी उसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है, इवन द प्रोसीजर्स है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल को लेकर के, दैट वुड बी ऑल्सो डन बाय द नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशंस, राइट। और अगर एनसीटी अथॉरिटी की बात करें, चाहे उसके मेंबर्स की सैलरीज हो, अलाउंसेस हो, सर्विस कंडीशंस हो, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन वुड बी अगेन मेंटेन बाय द ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंस, राइट। सो इस तरह की चीज़ें जब किसी के सुपरविजन में नहीं होगी, ऑटोनॉमली जब चीज़ें काम करेगी तो उसकी एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द एनटीसी इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अगर स्टैब्लिशमेंट होती है तो किन किन रोल उनको दी जाएगी। दैट इंक्लूड सपोर्ट सर्विसेज टू ट्राइब्यूनल मेंबर्स, लिटिगेंट्स, देयर लॉयर्स, एंड फॉर दिस पर्पस इट विल नीड टू हैव एबल टू हायर द एंड सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, उसको कंसोलिडेट करना, इम्प्रूव करना, मॉडर्नाइज करना एंड ट्राइब्यूनल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक करना, ये सारी जिम्मेवारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है वो एनटीसी को दी गई है। एंड इवन द एस्टैब्लिशिंग ऑफ एनटीसी वुड डेफिनेटली एंटेल रैडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेजेंट ट्राइब्यूनल सिस्टम। सो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि रैडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्राइब्यूनल सिस्टम इज एन एसेंशियल इन इंडिया, इज इट रिक्वायर्ड? तो आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने होंगे मेंस एग्जामिनेशन में। So these are some of the important points that you can incorporate and write on the answers. Now कुछ ट्राइब्यूनल के बेसिक आपको मैं बता दूं, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत से तो यू मस्ट बी अवेयर। तो ट्राइब्यूनल होती क्या है, क्वाशी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि सेटअप की जाती है टू सॉल्व प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं या और भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाई जाती है। And these tribunal perform the function like adjudicating disputes, right between the consenting parties, administrative decision हो, review करना हो किसी administrative decision को, और इस तरह के जितने काम से वो ट्राइब्यूनल को दिए जाते हैं। And these tribunal were not the part of the original constitution
It was incorporated in Indian Constitution by 42nd Amendment Act. सो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट की गई थी उसके बाद ये इंक्लूड किया गया. एंड आर्टिकल 323A that deals with the administrative tribunal, and article 323B deal with the tribunals of other matters, right? So these are some of the important tribunal and basic concept of the tribunal that you must know. Now moving ahead with the other news, that is strict rules for the slot info sharing with the third parties. Important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development in various sectors. So यहाँ कोविन में जो फ्री API की जो प्लेटफॉर्म रखी गई थी उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है. कई ऐसे थर्ड पार्टी ऐप हैं जिन्होंने जो वैक्सीन की स्लॉट है उसकी अलार्म, उसकी अलर्ट्स लोगों को पहले दी, और एक्चुअल जो कोविन पे जो रजिस्टर करना चाह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रही है. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. सो द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि एक नोडल बॉडी है जिसको पूरी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी दी गई है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस द कोविड वैक्सीन, राइट. सो जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है कोविन पोर्टल, उसकी जो वैक्सीनेशन स्लॉट्स है, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द अवेलेबिलिटीज दैट वाज अवेलेबल टू द थर्ड पार्टीज, नाउ दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. किस तरह से प्रॉब्लम्स हैं? तो कोविन के जो APIs थे दे वर ओपन टू पब्लिक टू अलाउ एनीवन टू बिल्ड अ थर्ड पार्टी पोर्टल्स, बट ये देखा गया है कि उसमें जो वैक्सीनेशन स्लॉट की जो बुकिंग थी उसकी इंफॉर्मेशन या फिर जो उसकी अलर्ट्स थी वो लोगों को पहले दे दी गई बाय द थर्ड पार्टी, एंड बिकॉज ऑफ विच द एक्चुअल वेबसाइट सीम्स टू बी फुल व्हेन यू गो बाय बुकिंग एंड शेड्यूलिंग द वैक्सीनेशन. कोविन पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बेसिक मैं आपको बता देता हूँ. इट इज़ अ क्लाउड IT बेस्ड प्लेटफॉर्म सपोज टू हैंडल माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द इंडियन कोविड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और वैक्सीनेशन यू कैन से. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है दैट इज द ओनर ऑफ इट. जो पूरी प्लेटफॉर्म है दैट इज यूज फॉर कंडक्टिंग पोलियो एंड अदर क्रूशियल इम्यूनाइजेशन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. इससे पहले चाहे वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो, इस तरह की चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑलरेडी पहले की हुई है. So this app, the CoWIN app, enables monitoring and inoculation drive of tackling the listed beneficiaries. कहाँ पे actual beneficiaries कितने हैं, कितने लिस्ट किए गए हैं, हर स्टेट में कैसी vaccinations हैं, and how you can register and book your schedules, right? And this also help to counter the proxy vaccinations. So an authentic website and platform where an individual citizen of this country can register themselves. नाउ मिसयूज ऑफ पोर्टल्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट की जो डिसीजन है ये सजेस्ट करती है कि पोर्टल के जो API है, ओपन प्लेटफॉर्म इंटरफेस जो है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया है टू सेट एन अलर्ट एंड बुक द स्लॉट्स, एंड इट वाज डन टू इंश्योर द स्केबिलिटी इन द प्लेटफॉर्म एंड प्रिवेंट द साइबर अटैक. ये जो साइबर अटैक हो सकते हैं, पॉसिबल साइबर अटैक हो सकते हैं, उससे रोकने के लिए. एंड कोविन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन जियो फेंस्ड to limited access to the site from Indian IP address, right? कुछ ऐसे और भी issues देखे गए. This caused the problem for the non-resident trying to book the vaccination appointment in some countries in India, right? And CoWIN public API to find appointment availability to download the vaccination certificates. और ये जो API थे they are available used by all third party applications. So now government has taken caution and definitely they would be prohibiting some of the important technical issues on the API so that no cloning and other stuffs can take place. Now what is open application program interface API के बारे में अगर बात करें, application program interface होती क्या है? It refer to a publicly applicable application program. इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज फ्री, बट पीपल कैन डाउनलोड इट एंड प्रोवाइड डेवलपर एक्सेस टू प्रोप्राइटरशिप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट. So this is API. A question can be asked with a basic sense of understanding that what is API, how does it work. Now third news, that is UNSC called to end the violence in Gaza. We have seen the Israel and Palestine, the war which is very devastating, and a lot of people have died in this war without any conclusive efforts from Israel or either from Palestine. So this is important for the general studies paper 2, effect of policies and politics of the developed and developing countries. So in a recent statement, जो UN के सेक्रेटरी हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो करंट गाजा क्राइसिस है that can plunge into region into an unstable security and humanitarian crisis. Recently, Israel was a country that made itself COVID-free,
But this type of action taken by Israel and even Palestine is something which is not appreciated, and this can further lead to the humanitarian crisis. नो इसराइल के स्टैंड की अगर बात करें, इसराइल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में ये बात क्लियर की है, द वायलेंस जो हुई थी दैट वाज प्री डिटरमिन्ड बाय द हमास वहाँ की एक मिलिटेंट ग्रुप है, दैट नो द इसराइल सेड कि हमास ये सारी चीज़ें जो की गई है, दे हैव प्रोवोक्ड इसराइल टू डू दिस decision, right? So urging the condemnation of the militant attack in the UNSC session, and they said that Israel army stated about 3,000 rockets that was being fired from the coastal strips, जो कि खास करके गाजा के जो स्ट्रिप्स हैं वहाँ से आई, and even the dome anti-missile system has been intercepted around 1,000 rockets. So 3,000 rocket was being stated from the Hamas group. 3,000 तक अटैक किए गए हैं, जिसकी रिपरकशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ के टाउन में हुई है. नाउ इंडियाज़ रिएक्शन, बिकॉज इफ यू आर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इंटरनेशनल रिएक्शन, आपको इंडिया की जो रिएक्शन है उसके बारे में भी स्टैंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो इंडिया कॉल्ड कि जो ये इमीडिएट डी एक्सकलेशन की जाए इस सिचुएशन की बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन. सो एक पहली पब्लिक मीटिंग में यूएनएससी में जो हुई थी उसमें इंडिया ने ये क्लियरली कहा है. एंड बोथ India has advised that both countries should refrain from attempt to the unilateral changes existing in the status quo. खास करके Eastern Jerusalem and neighborhood. Jerusalem is again, these are the holy places that are situated in Israel. And India's permanent representative to United States उन्होंने ये कहा है कि दोनों countries they should resume a direct dialogue establish करने की ज़रूरत है, so that they can come to a conclusion. और इस तरह के जो 2 state solutions है उसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करेगी, राइट. सो दीज वर इंडियाज रिएक्शन एंड सपोर्ट विथ रिगार्ड्स टू इजराइल एंड फलस्तीन वॉर. नाउ मैंडेट क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, बिकॉज इफ यू आर डिस्कसिंग यूएनएससी तो कुछ छोटे मैंडेट्स आपके लिए जानने ज़रूरी है. फर्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये तो सबसे फोरमोस्ट काम है यूएनएससी की. उसके अलावा अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑल मेंबर्स एंड द स्टेट आर ऑब्लाइज टू कंप्लाई विद द काउंसिल डिसीजन. तो जो भी डिसीजन होता है यूएनएससी को उसके सारे मेंबर्स को कंप्लाई करने होते हैं. एंड इट कॉल अपॉन पार्टीज टू डिस्प्यूट टू सेटल बाय द पीसफुल मीन्स एंड रिकमेंडेड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. तो ये कुछ प्रॉपर मैंडेट्स हैं जो सारे मेंबर्स कंट्री को अधर करने होते हैं, एंड दीज डिसीजन आर बाइंडिंग on the member countries. Now state-wise positivity is uneven. Basically खास करके यार पॉजिटिविटी रेट की बात करें यार, जो जिस तरह से ग्राफ थोड़ी सी नीचे आई है इंडिया में, ऑलमोस्ट वी आर विटनेसिंग अ केसेस ऑफ 3.5 lakhs which was earlier 4.2 lakh. तो उस तरह से हर स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेटली चीज़ें कम हुई है. We'll see what are the reports. So important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. So the number of new COVID-19 cases in India have shown consistent dip. Week there was also a drop in the test positivity rate. और अगर बात करें जो drop की, that has been accomplished by the increase in testing in some state. ऐसा नहीं है कि जो cases drop हो रही है उसमें testing को कम किया गया है. Testing has also been increased. और बहुत ज़्यादा पे ये दिखाया गया कि टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी जो एक्चुअल रेट है, जो एक्चुअल ग्राफ है, वो ये बता रही है कि कई जगह पे रिपोर्ट्स हैं जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम हुए. नाउ स्टेटस, अगर कुछ स्टेट्स की अगर बात करें, सो सम स्टेट्स लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर द स्टेट दे हैव पॉजिटिविटी रेट फॉलिंग. इन स्टेट्स में पॉजिटिविटी रेट घटी है और जो टेस्टिंग के लेवल्स है उनको इंक्रीज किया गया. यू हैव सीन इन स्टेट्स लाइक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल द कंप्लीट लॉकडाउन हैज बीन imposed by the state government for 15 days to contain this virus, and these states are following optimal testing strategy. एक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करके ये आगे काम भी कर रहे हैं. However, अगर रूरल इंडिया की बात करें, खास करके इन स्टेट लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स, यहाँ पे रिपोर्ट ये बात की है कि जो टेस्टिंग है दैट हैज़ बिन मिनिमल, ब्रिंगिंग डाउन द क्वेश्चंस ऑफ एक्चुअल स्प्रेड ऑफ द केसेस. कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, दे हैव सीन इंक्रीज इन द रेट ऑफ टेस्टिंग, बट देयर पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है इन स्टेट्स.
बट जो सजेस्ट ये की गई है, टिल द टाइम इज नीडेड टू ऑगमेंट द टेस्टिंग टू कैप्चर द मोर इन्फेक्शंस. So definitely these states would be working. Some strict action has already been placed in the state of Odisha, Tamil Nadu and Punjab. So Kerala and Himachal Pradesh, there is a slight drop in the test that was conducted, right? So कुछ स्टेट में टेस्टिंग इंक्रीज हुई है, कई जगह पे डिक्रीज हुई है. नाउ वेज टू मैनेज द केस लोड, हाउ द केस लोड वुड बी मैनेज्ड और क्या सजेशंस हैं. तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड ये सजेस्ट की जा रही है कि हाई टेस्टिंग इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, और जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत है, दैट नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर इन्फेक्टेड, track them, isolate them with positive cases and maintain higher testing level. That is the most important thing that government can do. And certainly the most important point at this point of time, when we have vaccines, to administer a large number of vaccine to the people of the age group where it is possible, possibly from 18 to 65, right? अभी 18 से 44 ऑलरेडी ओपन है और 45 से 60 के रूप में जो एज ग्रुप है उनको ऑलरेडी वैक्सीनेट किया गया है. So in a nutshell, 18 to 65 at the age group where we have to administer them at the earliest so that they do not get the reinfection of the COVID-19. डेथ काउंट की अगर बात करें, इवन द एवरेज रोलिंग केस बिगेन टू फॉल, और रजिस्ट्रेशन जो की गई थी कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स में, दैट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली लो. 3,900 की डेली इंडिया में रिपोर्ट की गई थी, बट पिछले कुछ वीक्स में इसमें केसेस कम हुए हैं. Various reports suggest that the number of recurrence of the COVID-19 death has been under counted in the several states. So बहुत states में नंबर कम हुए, कई states में इंक्रीज हुए, पर proportionately एवरेज आप देखोगे तो उसमें नंबर डिक्रीज हुई है. बट डेफिनेटली it is being also anticipated from the expert group that the third wave can also come to India. So we have to take all precautionary cautions. We as an individual has to follow all the COVID protocol that can help us to contain this pandemic. Now, government fails during the second wave of the COVID-19. This is an editorial reported in the Indian Express. This can be important for your general studies paper too, government policies and intervention for the development of various sectors. So this is the second editorial on this session. So what we'll be discussing under this editorial? So first, talking about the theme. So this theme is talking about government failure to control the second wave. And upon all these things, we'll be also categorizing this editorial under the background. क्या क्या background है वो मैं आपको बताऊंगा. पीएम के जो स्टेटमेंट थे दावोस में उसको देखेंगे. ब्लाइंड नेशनलिज्म की बात की गई है. व्हाट इज ब्लाइंड नेशनलिज्म? टू फोल्ड वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की गई है. सो दीज आर द पॉइंट्स अंडर विच आई विल बी डिस्कसिंग द एडिटोरियल. So why the central government failed to anticipate the second COVID wave? जिस तरह से पेंडेमिक की ऑलरेडी जो डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट है, जब फर्स्ट में हमने बहुत हद तक चीज़ों को कंटेन कर लिया था, देन वाई इट हैज़ रिजल्टेड सच सीवियरिटी के साथ जो दोबारा जो वेव आई है उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हुई. So why the government has failed? So this is the question that was raised by the editor in this editorial, and some explanation are obvious. कुछ का कहना है कि जो concentration of power है that was basically in the hand of few men. By few he mean to say that the home minister, that is I'm not naming anyone, home minister and prime minister, right? So these are some of the two people upon which the power has been confined, and he has not named them but he has hinted this, right? And जो इलेक्शंस की जो चल रहे थे वेस्ट बंगाल में, इवन इन अदर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, ऑल्दो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट फोकसेस ऑन द सदर्न स्टेट बट दे वर मेन फोकसिंग ऑन द वेस्ट बंगाल. So these were some of the pivotal reason because of which government deviated from its actual works and commitment. Now पीएम के स्टेटमेंट की अगर बात करें दावोस में, तो ऑलरेडी पहले ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि हमने कोविड-19 से इंडिया में फाइट कर लिया, वी हैव ओवरकम दिस problem and India was successful country. These announcement was already made without understanding the gravity of second COVID-19, right? And he said that India guides the world how the traditional medicine Ayurveda can improve the immunity. तो ये सारी बातें डावोस मीटिंग में ऑलरेडी कह दी गई थी, जबकि ये पता नहीं था कि सेकेंड वेव भी आने वाली है. सो
once you have not vaccinated your whole citizen, this statement should be avoided from the prime minister. So this is a criticism that this editorial talks about. And the prime minister has also mentioned that India send its vaccines to several countries, जिसको लेकर के अभी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है. सो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन की बात की गई थी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने बहुत सारे लाइफ को सेव किए हैं दूसरे कंट्रीज में भी. नाउ ब्लाइंड नेशनलिज्म फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यू. ब्लाइंड नेशनलिज्म के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए किस तरह से एक ब्लाइंड नेशनलिज्म फॉलो की गई थी. फर्स्ट, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया हैव वॉन द बैटल, राइट. एक्चुअली वाई? बिकॉज बहुत सारे इसके रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है उसके बीच में मीटिंग ही नहीं हुई है पिछले 2 महीने से. एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर दैट इंडिया कुड बी सीवियरली इम्पैक्टेड विद द सेकेंड कोविड वेव. He struck down the line in March where the second wave has already started in February. जब ये मार्च में बातें कही गई तो फरवरी के एंड में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लग गई थी. And he did not consult the expert group on regular basis, right? अगर बात की जाए तो जो एक्सपर्ट टास्क फोर्स थी, नेशनल साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोविड-19, वो जनवरी 11 से लेकर के अप्रैल 15 के बीच में उनकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है. सो यू कैन सी द सीरियसनेस ऑफ गवर्नमेंट. दे जस्ट thought that the vaccine has already been manufacturing in India and now we have finally won the battle. So I think the government has very lenient approach, because of which many lives have, we could not have saved many lives which could have already been saved by the government. Now the second corrective is to the hyper nationalism. Hyper nationalism की अगर बात करें, so हिंदू ट्रेडिशन की बात की गई, जहाँ पे ये कहा गया कि basically the Indian traditional methods, you have seen that the cow dung and all other stuffs were being talked about, that does help in containing the virus, which is actually evidential, non-scientific and complete rubbish. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो कोरोनिल है प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय पतंजलि इज एक्चुअली इफेक्टिव इन कोविड-19. तो ICMR ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को काफ़ी इसकी कंडेम किया, इस जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनके डिसीजन को, कि वी शुड नॉट प्रमोट दिस टाइप ऑफ थिंग, इट अल्टीमेटली इम्पैक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, राइट. तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था. बिकॉज of the political reason government has supported the Patanjali also. Now third, government endorsed many pseudo remedies. Pseudo remedies की अगर बात करें, कई leaders ने कहा कि bathing in Ganga can produce your immunity, can increase your immunity, and million pilgrimages have assembled in Haridwar in April in the Kumbh Mela, and this has also led to gaining the momentum in the कोविड-19 वेव्स. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फॉल्ट. अगर इस गवर्नमेंट की आप बात करोगे तो जो फॉल्ट है उसकी लेवल हर बार इंक्रीज हुई है, और जो फॉल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है. इवन अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट सपोज टू मेक सच लेवल ऑफ मिस्टेक्स. इट कैन बी डन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. इवन स्टेट्स में ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट इफ़ यू आर रनिंग द एंटायर कंट्री, इतने लेवल ऑफ मिस्टेक्स आपके साथ होना बिल्कुल लाजमी नहीं है. एंड दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंटेन दिस पेंडेमिक. नाउ टू फोल्ड वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की अगर बात करें, ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन कम थी, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी, जो वैक्सीनेशन थी, दैट वाज बीइंग सेंट टू 2 बिलियन डोजेज and to the low and middle income countries. We understand there are some commitment, but many other countries like UK and United States, even Germany, have not sent any of the vaccines, right? So the Prime Minister has announced in January that they would export the vaccines to free of cost to Mongolia, Oman, Myanmar. ये सारे countries हैं जिन पे vaccines भेजी गई as a goodwill gesture. So I personally feel this was not required, because first we could vaccinate our people, then we could have the liabilities. We could have just simply tell the international community that we are extending this liability. Once we vaccinate our people, we'll send it to you as well. So give us a time of 6 months, then we can, once the production has increased, we'll just make the obligation that is given to us, right? So इस तरह से चीज़ों को टैकल किया जा सकता था. And under in the 4 month, the vaccine Maitri that was being started, यहाँ पे 64 million doses of vaccine was being given to other countries. This include 35.7 million to commercial basis, 18.2 million through co-vaccine program, and 10 million as a grants, right? And at that time, 120 million people has already, no, this is the only level of the people that were vaccinated in the country. So you can see the number, almost इसके half जो थे वो vaccination already दूसरे countries में जा चुके थे.
Now, when the second wave gained the momentum, not only India has stopped its export but has accepted the aid from foreign countries. तो एक तरफ तो हम वैक्सीन मैत्री कर रहे थे जहाँ पे हमने दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन दी, बट the situation has worsened so much that we have to again ask for the help from the other countries, right? So this was a situation where government failed to interpret and contain this virus. Now coming to the MCQs question, and before we proceed with the questions, just let you know the correct answers. जो कल के answers थे Saturday के, उसके correct options क्या क्या हैं. So for the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is C. Now the questions: current global economic monitoring report is being released by which among the following organizations? If you know the correct answer, just let me in the comment section. I'm just asking the report because this type of report is being asked in the examination. Second, consider the following statement about Indian Cyber Crime Coordination Center. It is under the Prime Minister office. The scheme of setup of 14C was approved by on October 2018 to deal with all India cyber crimes comprehensive and coordinated manner, right? So again, you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. So this was all about the daily news and editorial analysis, followed by some questions for practice. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.